ریاستی حکومت نے پیر 8 مارچ کو یوم عالمی خواتین کے موقع پر خاتون سرکاری ملازمین کو خصوصی کیجول لیو لینے کی اجازت دے دی ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار کی جانب سے اس ضمن میں ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا ہے، جس کی نقل تمام محکمات کے سربراہوں اور ضلع کلکٹروں کو روانہ کر دی گئی ہے۔ امیر امارات ملت اسلامیہ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے احمد آباد کی عائشہ عارف خان کی خودکشی کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ دراصل ہماری نئی نسل کی دین سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ امارت ملت اسلامیہ کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا پروگرام ایک عرصے سے جاری ہے۔ شب معراج، شب برات اور شب قدر جیسی مقدس راتوں میں بھی جلسوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولانا جعفر پاشا نے امارت ملت اسلامیہ کی طرف سے قائم کردہ بیت المال اور اس کی خدمات کا بھی تذکرہ کیا۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ حضرات کو جس بات کے لیے زحمت دی گئی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ امارت ملت اسلامیہ آندھرا پردیش یہ تقریباً 60 سال سے الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہی ہے، اور اس کے تحت پہلے اصلاح معاشرہ کے پروگرام چلتے تھے اور الحمدللہ آج بھی چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ مزید ان کاموں میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ہمارے 3 اہم جلسے ہوا کرتے تھے، اور یہ مرکزی جلسے جامع مسجد چوک میں ہوا کرتے ہیں، لیکن 1 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جلسے نہیں ہو پائے، اور شاید لوگ اب یہ جلسوں کو پھر وہی شوق اور ذوق سے ان کو آنے کی ترغیب دینا بھی ہے، اور ساتھ میں ان کو یہ احساس دلانا بھی ہے کہ آج تک جو بھی حالات ہو رہے ہیں یہ ہمارے بچیوں سے دین سے واقف نہیں ہونے کی وجہ سے، بچوں کو دین سے آپ واقف نہیں کرانے کی وجہ سے آج بے رحمی کا شکار بچے بنے ہوئے ہیں، اور ایسے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں جو ہم کو اور خصوصاً ہمارے مسلمان بچے ایسے چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شراب ہمارے پاس نوجوانوں کے پاس عام ہو گئی ہے، نشہ آور چیزیں وہ بآسانی اپنے استعمال کر رہے ہیں اور بآسانی ان کو مل رہی ہے۔ اسی انداز سے جو بھی آج کل کے حالات میں بچیوں کے جو ہمارے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ روز بروز جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ معراج کے جلسے، برات کے جلسے، شب برات، شب قدر، شب معراج جو جلسے رہتے ہیں ایک مرکزیت رکھتی ہیں، اور الحمدللہ یہ سال و سال سے ماشاءاللہ 110 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ میرے دادا جان نے آغاز کیا تھا، پھر میرے والد ماجد نے وہ پروگرامہ کیے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آج وہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے۔ اسی انداز سے میرے عزیز بزرگوں اور ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر ہفتہ یہاں اصلاح معاشرہ کے لیے درس قرآن بھی ہوتا ہے، وہ بھی 10:30 بجے رات رکھی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ پورے اپنے کام کو انجام دے کر یہاں آئیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کر اپنے دینی معلومات حاصل کریں۔ آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں اس میں، اور آپ اپنے جو بھی گھر کے حالات ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے بیت المال کے قیام کو بھی عمل میں لایا، ساتھ میں دارالخدا کا کام ہے۔ آج مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ بچیوں کو صحیح راستہ بتانے والے نہیں مل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچیاں دن بدن دین سے دور ہوتے جاتی ہیں،
और घर वालों को उसका पता ही नहीं चलता है। और महर को हमारे जोड़े की रकम जो आजकल ये चल पड़ी है, और शादियों को जो हम लोगों ने आजकल एक ऐसा ज़रूरी यानी अपने पे तसव्वुर कर लिया है कि अगर हम शादी में अच्छी नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान में हमारा असर क्या होगा, शादी में अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारी बच्ची का क्या होगा। और हम इस अमल को इस कदर आगे बढ़कर कर रहे हैं कि शरीयत एक तरफ रह रही है और शरीयत को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, और अपनी मनमानी जो अपने से हो सकता है वो काम अंजाम दे रहे हैं। मुझसे एक सवाल किया गया कि क्या हम अपने लड़कियों को जो हालात में इस वक्त परेशान हैं हम क्या कर सकते हैं। याद रखिए, ज़बरदस्ती हम अपने लड़कियों को ससुराल भेजते जाते हैं जब हमको मालूम नहीं है कि वहाँ अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लिहाजा वो अमल बच्चियों के लिए भी नुकसानदेह होता है और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसलिए बच्चियों से मेरी खुसूसन वालिदैन से उनकी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर बच्चियाँ अपने रहना नहीं चाहती हैं और उनके शौहर के दरमियान ऐसे हालात साजगार नहीं हो रहे हैं, तो आपका काम यह है कि अपनी बच्चियों को आप दारुल ख़ज़ा से रुजू करें और दारुल ख़ज़ा में रुजू होकर अपने बच्चियों के मसाइल को पेश करें। हमारे पास काउंसलिंग सेंटर भी है जहाँ हम पहले मुशावरत करते हैं, दोनों को बिठाकर बात करते हैं, दोनों को मौके देते हैं। लेकिन जब वो बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उनको मशवरा देते हैं कि भाई इस काम में अब आप आगे मत बढ़िए। ये हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम ज़बरदस्ती बच्चियों को अपने ससुराल भेजना चाहते हैं, जबकि ससुराल में वो मुकाम वो मर्तबा उनको नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी बच्चियों पर ज़बरदस्ती ना करें और उन पर ये टेंशन ना बढ़ाएं कि आप नहीं जाने की वजह से हम ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे, हमारे घर में रुसवाई होगी, ख़ानदान में हमारे थूकेंगे। इस अंदाज के जुमलों से बच्चियों को मज़ीद पस्त मत करें, कमज़ोर ना करें, बल्कि बच्चियों को हिम्मत अफजाई करें। जहाँ तक हो सके कोशिश करें गुफ्तगू से हल होने की, और फिर अगर गुफ्तगू से हल नहीं होता, जब आपका दिल बोल दे कि ये चीज़ चलने वाली नहीं है, तो फिर आप खुद उस मसले को हल करने के लिए आगे बढ़े और कोई एक नतीजे पे पहुँचे। वरना जो आयशा के हालात हैं वो फिर हमारे सामने मज़ीद दोहराए जाएंगे, और हम ये नहीं चाहेंगे कि ये आयशा बेगम की जो अंदाज थे हम उसके अप्रिशिएट करें या उनको शाबाशी दें। ये कमज़ोरी की बुज़दिलाना हरकत है। आपका काम ये है कि आप आगे बढ़े और अपने वालिदैन को इसके तरफ वालिदैन को ये बात का एहसास दिलाए कि ये जो अमल हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा आप मेरे लिए ख़ानदान को ना देखें, ख़राबतदारों को ना देखें, महल्ले वालों को ना देखें। अल्लाह ने औरत को खुला का मौका दिया है, खुला कर लेने का भी उनको इख्तियार दिया है, लिहाजा उनको वो इख्तियार हासिल है वो खुला के लिए। और जब खुला ना देता है तो फिर उसके लिए भी गौर करेंगे क्या करना है। चुनाचे मैंने एक बात ये तय की है कि इसके साथ साथ मैंने ये तेलुगु फिल्मी अदाकारा और साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने कौंसिल के आने वाले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। फैजाबाद डिवीजन में बीजेपी उम्मीदवार एन रामचंद्र राव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत पर तमाम महाजों पर नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस में अपना सारा वक्त गुजारते हैं, उन्हें रियासत की कोई फिक्र नहीं है। साबिक डिप्टी मेयर सुभाष चंद्र और भाग्यनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र रेड्डी ने भी इस जलसे से खिताब किया। ప్రజలకి ఏం చేయాలో ఆయన వాగ్దానాలు ఏవైతే చెప్పారో అవన్నీ చేయకుండా ఉన్నారంటే అదొక కేసీఆర్ గారే అని అనుకోవాలి. ఇలాంటి ఒక ముఖ్యమంత్రిని మీరు భరిస్తున్నారు, మీరు నెత్తి మీద పెట్టుకున్నారంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు. దేనికోసం భయపడుతున్నారు, దేనికోసం నెత్తి మీద పెట్టుకున్నారు? ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందా? పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేనప్పుడు దించాలి. చదువుకున్న వారు, మీకు చదువు లేని వారంటే అమాయకులు, ఓకే వాళ్ళు గెలిపించారు అని అనుకోవచ్చు. చదువుకున్న వారు కూడా ప్రతిదీ బేరీ చేసుకుంటారు. గతంలో ఏం చేశారు, ప్రస్తుతం ఏం చేశారు, ఫ్యూచర్ ఏం చేస్తారు, చేస్తారా చేయడా, మనకు అవసరం లేదు. ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటాను. ఆయన ఒక మాటలు ఒక భాష ఆయన పెట్టుకొని ఆ దానికి ఏమి రాదు, తెలంగాణకు మేలు జరగదు. వాళ్ళు
వృత్తి గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఎందుకు బీజేపీ తరపుతాడు ఆయన సుపుత్రుడు? ఆ భాష ఏంటని అడుగుతున్నా నేను. ఇదే మీ భాష? ఇదే మీ సంస్కృతి? Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बल्दी डिवीजन रैन बाजार के सोयार जंग की जोड़ी और इमाम बाड़ा इलाके का दौरा करते हुए वहां जारी वाटर वर्क्स के कामों का मुआयना किया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा ने बताया कि काम की तकमील के बाद अंदरून सदियों सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मजलिस बल्दी मसाइल की यकसुई के लिए शब रोज मेहनत करती है। इस दौरे में कारपोरेटर वासिउद्दीन और दूसरे मजलिसी कायदीन में उनके हमरा थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज सूर्यार जंग की देवड़ी और इमाम बाड़ा ये 2 इलाकों का दौरा किया गया, जहाँ पर बल्दिया के वाटर वर्क्स के काम चल रहे थे। उन कामों का मुआयना किया गया। सूर्यार जंग की देवड़ी के पास अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छे करे। अब करीबुल ख़त्म है, सिर्फ रोड का काम बाकी रह गया। रोड पीर या मंगल से शुरू होंगी, 1-2-3 दिन के अंदर वो रोड की तकमील होंगी। सूर्यार जंग की देवड़ी के जो गलियां हैं, मेन लाइन और बाई लाइन जितने भी है, वो पूरों में रोड का काम कटिंग कर दिए गए। रोड का काम शुरू होने वाला है। तकरीबन वहाँ के कामों की नौइयत ये है कि अगर ये हफ्ते में काम कंप्लीट हो गया तो इंशाअल्लाह 7-8 साल तक वहाँ कोई बल्दिया के काम की या वाटर वर्क्स के सीवरेज की लाइन के काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारपोरेटर साहब, पार्टी के दीगर लोगों ने बहुत मेहनत करके कामों को जारी रखा। अनकरीब कामों की तकमील होगी। इमाम बाड़े के पास भी यहाँ पर होटल के पास कटिंग करके यहाँ पे सीसी रोड का काम किया जा रहा है। और इमाम बाड़े के अंदर भी वो नाले तक कुछ लाइन, बड़ी लाइन मिला के पानी, बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम किया जा रहा है। वो काम तकमील होते ही रोड का काम भी होगा। बरक यहाँ पर मॉर्निंग स्टार होटल के पास से फुटपाथों के रोड के ज़रिए उनको आरास्ता किया जा रहा है। मेरे काम चल रहे हैं। एरिया कारपोरेटर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब की हिदायत पर ये तमाम बल्दी कामों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह वक्फे से आपके चैनल के ज़रिए इन कामों का मुशाहिदा किया जाएगा, आवाम को भी इससे वाकिफ़ करा जाएगा। शुक्रिया। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेमनगर हल्के ग्रेजुएट से एमएलसी चुनाव के सिलसिले में बीजेपी के इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। असम्बली हल्के याकूतपुरे के आईए सदन डिवीजन में कारपोरेटर श्वेता मधुकर रेड्डी की ज़ेर सदारत एक जलसा मुनक़िद हुआ। बीजेपी के लीडर स्वामी गौड़ और भाग्यनगर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी सदर सुरेंद्र रेड्डी ने ग्रेजुएट राजनीतियों से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवार एन रामचंद्रराव को कामयाब बनाए। रेलवे बोर्ड के रुकन के सुब्बाराव, सहादियो यादव, नरसिम्हा रेड्डी, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र रेड्डी के अलावा साबिक डिप्टी मेयर जी सुभाष चंद्र और साबिक कारपोरेटर ए जतेंद्र ने भी जलसे को मुखातिब किया। तेलंगाना के उर्दू स्कूलों के मसाइल पर एक रोजा सेमिनार उर्दू हाल हिमायतनगर में मुनक़िद हुआ। साबिक सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी प्रोफेसर एस शुकूर ने सदारत की। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी ने कलीदी खुतबा पेश किया। सेमिनार से खिताब करने वालों में डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी, डॉक्टर सोहेल अजीज और दूसरे शामिल थे। अल हिना एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी ने इस सेमिनार का एहतमाम किया था। इस मौके पर मानू के रजिस्ट्रार महमूद सिद्दीकी ने मुमताज साफ़ी FM सलीम की किताब देखना मेरी ऐनक से की रस्म इजरा अंजाम दी। साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया डॉक्टर मजीद बेदार, सदर शोबे उर्दू शादान कॉलेज डॉक्टर मीम खाफ सलीम और दूसरे भी मौजूद थे।
बहादुरपुर के मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने 10 मार्च को होने वाले बल्दी चुनाव के सिलसिले में जिले कर्नूल के टाउन अदूनी में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर रायदीनियों से मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। उनके हमरा रियासत नगर के कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग और पार्टी उम्मीदवार भी थे। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर की तरफ से माह अगस्त में गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादी का नज़म किया जा रहा है। सोसाइटी के सदर हारून रशीद ने मुस्तहिब गरीब लड़कियों के वालिदीन से फोन नंबरात 6281142936 या फिर 9700251154 पर रब्त अदा करने की ख्वाहिश की है। हारून रशीद ने बताया कि 2009 से अब तक सोसाइटी की तरफ से 89 मुस्लिम लड़कियों की शादियां की जा चुकी हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इज्तिमाई शादियों का गुज़िश्ता 10 साल से एहतमाम किया जा रहा था, पिछले साल कोरोना वायरस की वबा की जानिब से इसको रोका गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर इस खैर के काम का आगाज़ किया गया है। हर साल की तरह जुल्हज्जा के महीने की आखिरी हफ्ते में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है बरोज़ इतवार, और महीना अगस्त का है 1 तारीख को, और चांद की 21 जुल्हज्जा है। तो जो भी इस्तेदाद ना रखते हो, सहूलत ना हो, वैसे माँ बाप से एक गुजारिश की जाती है हमारी कमेटी की जानिब से, वो आपस में अपने रिश्ते तय कर लेकर कमेटी में रुजू हो जाए। और दरख्वास्त लेने की आखिरी तारीख़ जून 20 तारीख तक है। और इस खैर के काम में अहले हज़रात जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो माली ताउन के ज़रिए से, जो सामान के ज़रिए से, जिस तरीक़े से भी ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस खैर काम को बड़े ही अखलाक के साथ हम ये काम किया जा रहा है। और इसके अंदर जो भी ताउन कर रहे हैं, हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, उन सब को हमारी कमेटी की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जामा मस्जिद बारकस में मुकामी लोगों के लिए एक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। बारकस यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त सैयद जमील ने बताया कि अपोलो केयर हॉस्पिटल और ओलिव हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल टीम ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि 300 से ज्यादा अफराद की तशखीस की गई और उनमें मुफ्त दवाएं दी गईं। मजलिस के सीनियर लीडर ताहा अल कसीरी, फैसल बा अवाम, साद बा अवाम, फहद, सादिक बिन मसफर और दूसरे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बारकस यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सईद जमील, माशाल्लाह आज हमारी सोसाइटी की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप रखा गया बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत तादाद में लेडीज़, जेंट्स, बच्चे आके माशाल्लाह बीपी, शुगर टेस्ट, डेंटल चेकअप, आइस चेकअप विद फ्रेम फ्री दिया गया है हमारे पास में। इंशाल्लाह हमारी सोसाइटी, हमारी टीम मिलजुल कर इंशाल्लाह ऐसे कई कैंप कराएंगी और बहुत सारे हमारे पास प्रोग्राम्स है। इंशाल्लाह हम आवाम के दरमियान में एक हर किस्म से हर प्रोग्राम लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे दुआओं की गुजारिश है, आप लोग हमारी सोसाइटी के साथ जुड़िए, हमारा ताउन करिए, हमारे साथ जुड़िए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नूरानी मस्जिद हसन नगर के करीब रहने वाले 30 साल सैयद शफी ने दरख्त से लटक कर फांसी ले ली। बताया जाता है कि शफी 3 माह कबल दुबई से वापस हुआ था और डिप्रेशन का शिकार था। उसकी नाश रघवेंद्र कॉलोनी में पाई गई। पुलिस महिलादोपल्ली ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मोहम्मद अद्दीन हुसैन, महिलादोपल्ली पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। आज सुबह 9:45 को हम लोग को इत्तला मिली कि हमारे पुलिस स्टेशन लिमिट्स में राघवेंद्र कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई एक आदमी झाड़ को अपने आप को सुसाइड कर लिया, बल्कि 9:45 को हमको इन्फॉर्मेशन आई। उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम वहाँ पर रशअप हुए, वहाँ पर जाके देखे तक 10 बजे के अंदर हम लोग गए, वहाँ पे जाके देखे तक एक आदमी झाड़ को लटका हुआ पाया गया। उन्होंने अपने आप को एक केबल वायर से, उसी झाड़ पे केबल वायर जा रहा था, उसी केबल वायर को अपने गले से लगा लेके अपने आप को खुदकुशी कर लिए उन्होंने। और हम लोग उसकी डेड बॉडी उनके नीचे उतार के देखे तक महल्ले में सबको इंक्वायरी करे तो कोई भी नहीं पहचानते बोले। हम लोग सोशल मीडिया से अप्रोच होके व्हाट्सअप में व्हाट्सअप ग्रुप्स में उधर पूरा मैसेज फ्लैशअप करे। उसके बाद मालूम हुआ कि उन्होंने सैयद शफ़ी बोल के उनका नाम मालूम हुआ। उनके वालिद का नाम सैयद इब्राहिम और उनका मकान जो है हसन नगर में है बोल के मालूम हुआ। हम लोग उनसे राब्ता करें और डेड बॉडी को
शिफ्ट कर दिए उस्मानिया हॉस्पिटल को, और आगे की तहकीकात जारी है। इसमें और आगे क्या क्या मालूम होता है आप लोग को आगे हम लोग कार्रवाई बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। 40 से ज़ायद परिंद दोस्त अफराद ने हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा किया और वहाँ मुख्तलिफ अक़साम के चरिंद और परिंद का मुशाहिदा किया। सदर हैदराबाद बर्डिंग पॉज कल्याण एनिनी ने बताया कि जू में 88 अक़साम के परिंद हैं और इनमें से कई मुनफरिद और चुनिंदा परिंद समझे जाते हैं। जू की क्यूरेटर VVL भद्रा देवी ने खैर मकदम किया और जू की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मंचिरियल में कई पेट्रोल पंप पर 50 रुपए का पेट्रोल डालने से इनकार किया जा रहा है और इस मामले को लेकर कल रात 3 नौजवानों ने एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजिम पर हमला कर दिया। सब इंस्पेक्टर V रवि ने बताया कि इस सिलसिले में 3 अफराद को पेट्रोल पंप के मालिक E वेंकटेश की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श और उसके 2 साथियों ने यह हमला किया था। निजामाबाद की निखत जरीन तुर्की के शहर इस्तांबुल में होने वाले बॉक्सिंग के मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। ये मुकाबले 15 तक इस मार्च होने जा रहे हैं और वो 51 किलो के ज़िमरे के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदरनशीन ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने आलमी मुकाबलों के लिए निखत जरीन के इंतखाब पर उन्हें मुबारकबाद दी। इसी ज़िमरे से ताल्लुक़ रखने वाली वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम को टूर्नामेंट से इस मरतबा बाहर रखा गया है। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला 8 मार्च से शुरू होगा। हुकूमत इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात दर को मंजूर करवाना चाहती है। 1 माह तक जारी रहने वाले सेशन में कई बिलों की मंजूरी भी मुतवक्को है। इजलास ऐसे वक्त मुनक़िद हो रहा है जबकि मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके समेत 5 रियासतों में असम्बली के चुनाव के अमल का 27 मार्च से आगाज हो रहा है। जाने माने बंगाली फिल्मी अदाकार मिथिलेश चक्रवर्ती ने कलकत्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली से कबल बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिथिलेश चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसे खद्दे-आवर लीडर के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा। उन्होंने खुद को अजदहा करार दिया और कहा कि अजदहा जब एक बार डस लेता है तो सामने वाले की मौत हो जाती है। वाज़ेह है कि मिथिलेश चक्रवर्ती को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का रुकन भी बनाया गया था, लेकिन वो शारदा चिट फंड स्कैम में अपना नाम आने के बाद राज्यसभा की रुकनियत से मुस्तफी हो गए थे। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.